recording. So today I'll start the lecture number 14 of day 14, that is Z transform. Z transform. So Z transform, that is one type of transform. Whenever the transform term is there in your signal system or digital signal processing or any other communication topic, so whenever transform term is there, be sure that the transformation from one place to another place. That means, what do you mean by transform? What is the transform of a student? That is from matriculation to +2 science, and from +2 science to BTech engineer, and from BTech to MTech or BTech to job holder. That is the transform. That means whenever the transform term is there, always be sure that the transform is in between two fields, two different fields. That's why it is known as transform. So since Z transform terms is here, so that means obviously one field to another field. Now I have to find out from which field to which field the transform will be carried out. Okay. So first of all, Z transform is totally related to mathematical representation. Okay. Mathematical representation, or or you can say Z transform is a powerful mathematical tool for analysis of linear invariant discrete time signal in frequency domain. That is, it will transform linear time invariant discrete time system to its corresponding frequency domain. That means that Z transform always be represented in frequency domain. Okay, so how we will do the Z transform? Okay, so first of all, use of Z transform, that is LTI, that is time invariant, that means time scale. That means time scale to frequency scale, or you can say time domain to frequency domain. That transformation is known as Z transform. Or if you are going to define the Z transform, you have to say in such a way that the transformation from time domain to frequency domain of a linear time invariant discrete time system is known as Z transform. Okay, so Z transform is mathematically representation, that is representation of Z transform. Now how you will represent this? Since this is a mathematical tool, it is a mathematical analysis, so I have to represent the Z transform in mathematical way, okay, or in mathematical equation. So it is denoted by x of Z, that is Z transform. Okay, Z is equal to summation n equal to -infinity to +infinity
x of n z to the power minus n. This is the mathematical representation of Z transform. Okay, where Z is equal to R e to the power j omega. So I can say that implies Z is nothing but a complex variable. Complex variable. Okay, so now put the value of Z in this. So this is R e to the power j omega equal to summation over n equal to minus infinity to plus infinity x of n. Z के बदले पुट कर दो R e to the power j omega to the power minus n. So it will look like this. Summation over n equal to minus infinity to plus infinity x of n r to the power minus n e to the power minus j omega n. That is the representation of Z transform in complex variable. Okay, without expressing it in Z, I have to represent the Z transform in complex variable. Okay, now suppose I am taking an example like x of n equal to 1, 1, 0, 3, minus 1, 2. Suppose this initial value is 1, 0. 0th position is 1. So according to the formula, x of z equal to summation of n equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n. सर हाँ बोलो. हेलो सर. हाँ बोलो. सर आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है. अभी ठीक है? अभी तो ठीक है सर, बीच बीच में बहुत ब्रेक करता है. नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा. So n माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. नाउ इन इक्वेशन में देखो n का वैल्यू शुरू कहां से हो रहा है? n स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो माइनस इंफिनिटी टू 0 में n का कुछ वैल्यू नहीं है. दैट इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1. ठीक है. सो आई कैन राइट n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n फॉर दिस इक्वेशन ओनली. ओके, यहाँ पे देखो माइनस का कोई वैल्यू नहीं है. माइनस एक्सिस में द वैल्यू इज 0. सो यू कैन राइट दिस n इक्वल टू 0 टू इनफिनाइट. दैट मींस n का वैल्यू शुरू कहां से हो रहा है? 0 से. सो आई कैन राइट दिस. सो नाउ पुट द वैल्यू. दैट मींस x ऑफ 0 z टू द पावर माइनस 0 प्लस x ऑफ 1 z टू द पावर माइनस 1 प्लस x of 2 z to the power minus 2 plus x of 3 z to the power minus 3 plus x of 4 z to the power minus 4. So देखो 0, 1, 2, 3, 4. 4 तक लूंगा क्योंकि 4 तक ही ये सीरीज कंटिन्यू है. So no need to write the next step, that is x of 5. Okay, so now what will be the value? X of 0 में वैल्यू कितना है? 1. So and z to the power is minus 0, that is z to the power 0 value also 1 plus x of 1 में वैल्यू कितना है? 0. So that will not be calculated. That should that value is 0. So now x of 2 का वैल्यू कितना है? 3. That is 3 z to the power minus 2. X of 3 minus 1, that is minus 1 z to the power minus 3 plus 2 z to the power minus 4. So the z transform of the equation or of the series x of n is equal to 1 plus 3 z to the power minus 2 minus z to the power minus 3 plus 2 into z to the power minus 4. That is the z transform.
Now take another example. ठीक है, that is x of n equal to, यही एग्जांपल ले लो, 2 -1 3 0 1, यहां तक ले लो। ठीक है, so now according to the formula x of z equal to n equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n. Okay, now look at this series. यहाँ पे क्या है, 0 तक ही है, माइनस इंफिनिटी टू 0 तक ही इसका वैल्यू है। आफ्टर 0 दैट मीन्स n इक्वल टू 1 से इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो नो नीड टू कंसीडर द पॉजिटिव part. So you can write minus infinity to 0 x of z z to the power minus n. So now put that value, n equal to minus infinity to 0. So that means देखो 0 -1 -2 -3 -4. So x of -4 z to the power 4 plus x of -3 z to the power 3 plus x of -2 z to the power 2 plus x of -1 z to the power 1 plus x of 0 z to the power -0. Okay, so now again put that value, x of -4 का वैल्यू कितना है, 2 z to the power 4 plus x of -3, that means -1. So -1 z to the power 3 plus x of 2 का वैल्यू 3 है, so -2 का वैल्यू 3 है, so 3z square. x of -1 का वैल्यू 0 है, so no need to calculate this, plus x of 0 का वैल्यू 1 है, so that means 1. Okay, so this is the z transform of x of n. Now compare these two equations. In the first case we will consider the right hand sequence. Okay, that means right hand sequence जो है scale, if you are going to represent this number scale, so 0 से लेफ्ट वाला सिचुएशन माइनस है और राइट वाला सिचुएशन प्लस है। सो यहाँ पे क्या है, 0 से ऑल द इक्वेशन विल बी इन द राइट हैंड साइड ऑफ द z. So this type of equation is known as right hand sequence. ठीक है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन देखो, इसलिए मैंने दोनों टाइप का एग्जांपल दिया हूं। ठीक है, ये क्या है देखो, 0 का अगर कंसीडर करोगे तो ये 0 से लेफ्ट हैंड में इसका सीक्वेंस फैला हुआ है, सो दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड सीक्वेंस। ओके, नाउ अगेन मूव टू द फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे देखो, मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं। यहां पे देखो x of z, दैट मीन्स ये जो है पॉजिटिव एक्सिस में है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस में है, एंटायर जो नंबर है वो पॉजिटिव एक्सिस है, सो आई कैन राइट प्लस z. दैट मीन्स राइट हैंड सीक्वेंस आल्सो कैन बी रिटन एज x plus z. सिमिलरली ऑपोजिटली this equation can be written as x minus z, because ये जो सीक्वेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस एक्सिस में है, so you can represent like this. Again move to the first example. Now ROC, ठीक है, एक टर्म है यहाँ पे ROC, I will explain it in later. That means ROC means region of convergence. Region of convergence मतलब कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जो एरिया में उसको कन्वर्ज करेगा। सो कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ कन्वर्ज? ओवरलैप। ओवरलैप, ओके। any other meaning?
सपोज तुम ओवरलैप इज ठीक है, नॉर्मल है, बट एक्चुअल जो मीनिंग है, सपोज तुम अपने घर से निकल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा घर है पोखरा चौक, यहाँ पे कॉलेज है, ठीक है, तो तुम यू विल मूव टूवर्ड्स दिस, ओके, सो यू हैव टू मीट एट दिस पॉइंट, तुम्हें कॉलेज में आना है, तुम घर से निकल रहे हो कॉलेज में आने के लिए, तो ये जो तुम्हारा एंटायर रोड है, तुम इस साइड से आ सकते हो या रसिकपुर चौक से आ सकते हो या डायरेक्ट तुम रामपुर होके यूनिवर्सिटी होके कॉलेज में आ सकते हो, ठीक है, या फिर दूधा, एक मिनट रुको, नेट इशू, ओके, या तुम क्या कर सकते हो, दुधानी होके लिंक रोड पकड़ के यहाँ आ सकते हो। सो देखो, मेन तुम्हारा मीटिंग पॉइंट क्या है, कॉलेज, यू हैव टू मीट द पॉइंट ऑफ कॉलेज, कॉलेज में तुम आना चाहते हो, योर डेस्टिनेशन इज कॉलेज। सो तुम कॉलेज आने के लिए जितना एरिया जो पाथ यूज करोगे, सब पाथ कहाँ पे जा रहा है, थ्रू कॉलेज के थ्रू वो पाथ जा रहा है, सो दैट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, टूवर्ड्स कॉलेज। तुम किसी पॉइंट में पहुंचने के लिए, टू मीट अ पॉइंट, यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द पॉइंट, ठीक है, सो दैट इज नोन एज रीजन ऑफ कन्वर्जन। सपोज ये नंबर सिस्टम में मैं क्या करता हूँ, 360 डिग्री का एक रीजन ले लेता हूँ, ठीक है, 360 डिग्री का एक रैडर फॉर्मेशन, ये सपोज दिस इज 0, सो एंटायर, ये एंटायर जो है ये जेड ट्रांसफॉर्म का एरिया है, ठीक है, सो तुम्हारा जो इक्वेशन है उसको, उसका क्या निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, सो दैट मींस द इक्वेशन हैज टू मीट द फॉर्मेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। और सपोज ये तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी सीक्वेंस है ऑल आर द वैलिड पॉइंट ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, सो योर इक्वेशन विल मूव टूवर्ड्स दिस पॉइंट फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द position, so that is region of convergence. To meet a point, whatever region, or to meet a point, you are going through a region, that region is known as region of convergence. Okay, so first of all पहले right hand sequence को देखो, right hand sequence को देखो, ठीक है, right hand sequence में क्या है, राइट हैंड सीक्वेंस में क्या है, देखो जेड का जो टर्म है वो सब में है एक्सेप्ट जीरोथ पोजीशन पे, जेड इक्वल टू 0, जीरोथ पोजीशन पे, ठीक है, सो आई कैन राइट द रीजन, सॉरी, द एक्स प्लस जेड कन्वर्जेस, मतलब जा रहा है जेड ट्रांसफॉर्म में, वो जेड एरिया में, रीजन में वो जा रहा है, कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड एक्सेप्ट, कहां पे नहीं है सिर्फ जेड का वैल्यू, जेड मल्टीप्लाई है, ठीक है, कौन से पोजीशन पे जेड मल्टीप्लाई नहीं है, एट जेड इक्वल टू 0, सो एट z equal to 0. So for right hand sequence, all the value is converged for x of z converges for all values of z except z equal to 0. Okay, now next is left hand equation, ठीक है, सो लेफ्ट हैंड इक्वेशन में क्या है, देखो z ऑफ 0 तो है ही, ठीक है, और एक क्या है, z टू द पावर, z का पोजीशन -4 तक है, ठीक है, सो आई कैन राइट converge at all values of z except z equal to 0 तो पहले ही है, and
z इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी मुझे पता नहीं है कहां तक होगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, सॉरी माइनस इंफिनिटी नहीं, ये देखो ऑल द वैल्यू z इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक तो z इक्वल टू 0 है, दूसरा क्या है, ये प्लस z का जो प्लस है, प्लस दिस, ये जो पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस में इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो जितना भी वैल्यू है ये नेगेटिव एक्सिस में है, दैट इज माइनस इंफिनिटी से शुरू करके z इक्वल टू 0 तक है। ठीक है, सो इसको इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं z x of minus z converges at all values of z except z equal to 0, ये तो पहला है, and z equal to infinite। सो इन्फिनाइट देखो यहां से शुरू होकर ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये इन्फिनाइट 1 तक भी जा सकता है, 2 तक भी जा सकता है, 3 तक, या अप टू इंफिनिटी। सो आई कैन राइट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कन्वर्ज नहीं है, मतलब ये टोटली तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस में है। ठीक है, सॉरी नेगेटिव एक्सिस में है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्सिस दैट इज अप टू इन्फिनाइट, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये इसका कोई कन्वर्ज एरिया नहीं है। बाकी सब में ये कन्वर्ज कर रहा है, बाकी जितना भी पॉइंट है दैट इज z इक्वल टू -2 टू एकदम माइनस इंफिनिटी, जितना भी पॉइंट है वो टूवर्ड्स z ट्रांसफॉर्मेशन के रीजियन तक आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है सपोज ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ये रेडियस है, यहाँ पे जितना भी पॉइंट है वो z ट्रांसफॉर्म पॉइंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन का। सो अगर माइनस इंफिनिटी हुआ तो ये इसके अंदर, ये पॉइंट के अंदर इसका पोजीशन होगा। ठीक है, अगर 0 और प्लस इंफिनिटी की तरफ होगा तो ये पॉइंट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड इक्वेशन सीक्वेंस है। सो एक सवाल तुम लोगों में आ सकता है, सर लेफ्ट हैंड सीक्वेंस में हम z इक्वल टू इन्फिनाइट लिए कि कन्वर्ज z इक्वल टू इन्फिनाइट में, ये कन्वर्ज नहीं है, तो राइट हैंड इक्वेशन में हम लोग माइनस इन्फिनाइट तक क्यों नहीं लिए? ठीक है, सो देखो ऑलरेडी तुम 0 से इन्फिनाइट ले रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली यू विल नॉट कंसीडर द नेगेटिव एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस को हम, एक मिनट रुको, ओके सो ओके सो सिंस ये जो तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस में है, सो वी विल नॉट कंसीडर इन द नेगेटिव एक्सिस, क्योंकि 0 में ही कन्वर्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो 0 के बाएं साइड में जितना भी पॉइंट है उसमें भी कन्वर्ज नहीं होगा, ऑब्वियस मैटर। सो अगर पॉजिटिव एक्सिस है, वी आर मूव फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव एक्सिस, बट माइनस इंफिनिटी अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑलवेज वी आर मूविंग, आवर टेंडेंसी इज मूविंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव इंफिनिटी। So that's why it is mentioned that z equal to 0 and z equal to infinite. तुम अगर यहाँ पे लिखोगे z equal to 0 and z equal to minus infinite तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, ये तुम्हें कोई काटेगा नहीं कि तुम गलत लिखो, बट इट इज नॉट नीडेड सिंस 0 से 0 में ही कन्वर्ज नहीं हो रहा, ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सिस में कन्वर्ज नहीं होगा। ठीक है, but in positive, in left hand side you have to mention that z equal to infinite, इसमें तुम्हारा कन्वर्ज नहीं होगा। ओके, सो नाउ
by combining both. ठीक है, so again I am giving another example, x of n, that is 2 minus 1 3 0 1 0 3 minus 1 2, and this is from this. So obviously this is the combination of left hand sequence and right hand sequence. So this is the combination of both these, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा माइनस नेगेटिव एक्सिस में भी है, पॉजिटिव एक्सिस में भी, ठीक है. सो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? Obviously you have to consider the radius of convergence of x of z. Don't write this like this, always x is capital. X of z convergence at all region except z equal to 0 and z equal to infinite. ठीक है, z equal to 0 and z equal to infinite. कंबाइन कर लो, दोनों को कंबाइन कर लो. इसका रेडियस ऑफ कन्वर्ज कहां पे है? 0 पे, 0 को छोड़ के बाकी सब में है. इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहां पे है? 0 एंड इन्फिनाइट को छोड़ के बाकी सब में है. सो दोनों का कंबाइन तुम्हारा सीक्वेंस है. सो ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस will be in every point of z except z equal to 0 and z equal to infinite. Okay, so next I am giving you another example, that is z ट्रांसफॉर्म में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, सपोज x of n equal to a of n un. Now how to calculate this series? Okay, first of all आंखें बंद करके इसका इक्वेशन लिखो. पहला तुम्हारा जो काम है, that is n equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n. ये तुम्हारा पहला काम है. ठीक है, अगर z ट्रांसफॉर्म मिला तो पहला ही आंखें बंद करके तुम ये लिख दो. नेक्स्ट इज, देखो un है, ठीक है, un है. So un will be always from 0 to infinite. So obviously right hand equation. So n equal to 0 to infinite. un लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 0 से infinite तुम मेंशन कर दिए हो. xn का वैल्यू है an z to the power minus n. So now can I write this? n equal to 0 to infinite a z to the power minus 1 to the power n. I can write this. ठीक है, नाउ तुम लोग +2 में एक इक्वेशन पढ़े थे, दैट इज r of n, जहां पे 1 plus r square plus r cube डॉट 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 तुम्हारा r of n तक था. सो उसका इक्वेशन क्या होता था? दैट इज 1 minus r. ठीक है, सो नाउ पुट दिस वैल्यू, दैट इज ये यहाँ पे a z to the power minus 1 को r ले लो. ठीक है, एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 0 to infinite r to the power n. इसके साथ रिजेंबल हो रहा है. सो इसका फाइनल आउटपुट क्या है? 1 by 1 minus r. सो x of z equal to 1 by 1 minus r के बदले क्या होगा? a z to the power minus 1. Okay, so this I can write z equal to x of z equal to z by z minus a. ओके, सो नाउ देखो इसका आरओसी कैसे निकालोगे, इसका आरओसी कैसे निकालोगे. सो देखो z by z minus a, सो नीचे वाला हिस्सा ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, सो z minus a must be greater than 0, so z must be greater than 0. Sorry, z must be greater than a, so that is mod z whatever minus z. इसका ये आरओसी निकालने का शॉर्टकट मेथड है, उतना लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ेगा. नीचे वाला पोर्शन को ग्रेटर देन 0 कर दो. ठीक है, सो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो z ग्रेटर देन a, तो इसका आरओसी होगा mod z ग्रेटर देन a. Okay, so now the ROC
ROC is mod Z greater than A. Okay, mod Z greater than A मतलब A से ज्यादा होगा उसी में ये Z रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वहीं पे, ठीक है. So next class I will discuss about how to calculate stability using Z transform and different type of properties of ROC, that is region of convergence. Okay, so before leaving the class, I'm going to stop the recording first. So before ending the meeting, I am sending you the link of attendance. Okay. So Z transform, you have to practice this Z transform. ठीक है, तुम्हें कभी कभी देखोगे Z transform अगर 3 ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे